आदाब नाजरीन, एके न्यूज में आपका इस्तकबाल है। भैंसा शहर में मौजूदा सूरत हाल में आए दिन कोरोना वायरस बड़ी तेजी के साथ फैलता जा रहा है। भैंसा सुपरिटेंडेंट एरिया हॉस्पिटल डॉक्टर काशीनाथ ने बताया कि भैंसे में आज 19 टेस्ट किए गए, जिनमें 8 लोग को पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिनमें भैंसा शहर के 7 और मौजे घनौरा से 1 शामिल है। इस तरीके से भैंसा डिवीजन में जुमला 8 मुस्बत केसेस पाए गए, जिनमें मर्द 6 और ख्वातीन 2 शामिल है, जिनमें एक डॉक्टर और एक पुलिस ओहदेदार मौजूद है। इन तमाम 8 कोरोना मुस्बत को होम क्वारंटाइन में रख दिया गया, जबकि भैंसा शहर में गुज़िश्ता दिनों कबल 2 अफराद खातून समेत कोरोना से मुतासिर हो गए थे, जिनमें खातून को हैदराबाद गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन ये खातून दौरान इलाज फौत हो गई। इस तरीके से आज 8 कोरोना केसेस पॉजिटिव आने की वजह से भैंसा शहर की अवाम में तशवीश की लहर देखी जा रही है। इस तरीके से जिला निर्मल में आए दिन कोरोना वायरस के केसेस बड़ी तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है। रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी ने आज बासर मंडल के मौजे किरकुलपी में किसानों के लिए रैतु वेदिका के संग बुनियाद रखा और सीसी रोड का भी इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना ने किसानों की सहूलत के लिए डंपिंग यार्ड, सीसी रोड और मुख्तलिफ तरक्याती कामों को लेकर वजीर आला के चंद्रशेखर राव संजीदा है। इस मौके पर ZPTC, MPTC, सरपंचेस के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। కనిపించే బీచ్ అది పొలం వచ్చేసి బిల్డింగ్ కంప్లీట్ అయినా కూడా దొరకదు। म्युनिसिपल चेयरमैन आदिलाबाद जोगू प्रेमेंदर, वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, वार्ड नंबर 17 काउंसलर नजीर अहमद के हाथों आदिलाबाद के वार्ड नंबर 17 रामपुर में अवामी बैतुल खला की संगे बुनियाद रखी गई।
रियासती मिनिस्टर केटीआर की हिदायत पर आदिलाबाद के 8 मुकामात पर बैतुल खला की संगे बुनियाद रखी गई। 15 अगस्त तक बैतुल खलाओं की तकमील कर ली जाएंगी। इन ख्यालात का इजहार म्युनिसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंद्र ने बैतुल खला के संगे बुनियाद तकरीब के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 17 की अवाम में म्युनिसिपल के तहत डस्टबिन की तकसीम अमल में आई। आदिलाबाद म्युनिसिपल चेयरमैन ने आदिलाबाद की अवाम को साफ सफाई को मलहूज रखने का मशवरा दिया। इस मौके पर शेख शमा, मोहम्मद अशरफ और दीगर मौजूद थे। రాంపూర్ సంబంధించినటువంటి ఏదైతే రాంపూర్ గ్రామ పంచాయతీ మరి పట్టణంలో కలవడం జరిగింది. మరి దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఒక 8 లక్షలతో పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ నిర్మాణం కొరకు భూమి పూజ, అదేవిధంగా ఏదైతే చెత్త బుట్టీల పంపిణీ, తడి చెత్తకు పొడి చెత్తకు సంబంధించినటువంటి చెత్త బుట్టీల పంపిణీ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మరి వైస్ చైర్మన్ జై రాంజని గారు, కౌన్సిలర్ నజీర్ గారు, అదేవిధంగా మిగతా మా సంబంధించినటువంటి అజయ్ గారు, కొండ గణేష్ గారు, అదేవిధంగా వార్డుకు ఈ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి మరి బోయిరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా సంబంధించినటువంటి గ్రామస్తులందరూ కూడా మరి దీంట్లో పాల్గొనడం జరిగింది. ఏదైతే మరి చాలా రోజుల నుంచి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక కౌన్సిలర్ నజీర్ గారు మరి ఇక్కడ టాయిలెట్స్ కావాలని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా మేము పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అనేది ముఖ్యంగా మరి ఏదైతే మన మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు మరి పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ విషయాన చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా మొన్న కేఆర్కే కాలనీ కానీ, అదేవిధంగా దుర్గానగర్లో, అదేవిధంగా రాంపూర్లో కానీ, అదేవిధంగా మరి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఏ ప్రాంతాల్లో అయితే రద్దీ ఉంటుందో ఆ ప్రాంతాల్లో మరి టాయిలెట్స్ నిర్మాణం అనేది ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతుంది. ఆగస్టు 15 లోపు ఇవన్నీ పూర్తి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ కూడా మరి తొందరగా స్పీడ్ చేయాలని మరి తొందరగా కూడా 15 లోపు ఇవన్నీ పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా చెత్త బుట్టీలు అనేది కూడా మరి తడి చెత్తకు పొడి చెత్తకు సంబంధించినటువంటి చెత్త బుట్టీలు కూడా వారి సంబంధించినటువంటి రిక్షా వచ్చినప్పుడు దాంట్లో చెత్తను తరలించే వాహనంలో వేయాలని, చెత్త తరలించే వాహనానికి కూడా ఇంకొక 10 కూడా కొనడం జరిగింది. ఇంకొక 10-15 రోజులు అవి కూడా రావడం జరుగుతుంది. ప్రతి వార్డుకు ఒక్కొక్క వాహనం వచ్చే విధంగా చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా డిఆర్సీ సెంటర్లో కూడా అక్కడ ఒక 90 లక్షలు కేటాయించుకోవడం జరిగింది మొన్న కౌన్సిల్లో. దాంట్లో అక్కడ కూడా ఈ వేరు చేసేది మరి సేంద్రియ అక్కడ తడి చెత్తతో ఎరువులు తయారు చేయడం, అదేవిధంగా పొడి చెత్త ఏదైతే ప్లాస్టిక్ కానీ ఏదైతే అవన్నీ కూడా వేరు చేసేటువంటి డిఆర్సీ సెంటర్ కొరకు ఏదైతే మన బంగారుగూడలో ఉన్నటువంటి దానికి డెవలప్మెంట్కి ఒక 90 లక్షలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా తమ పరిసరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకునే ఉద్దేశం, ఎందుకంటే ఇది ఈ సీజనల్ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మరి జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఎందుకంటే కేసెస్ రోజుకు రోజు పెరగడం జరుగుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలియజేసుకోవడం జరుగుతుంది. निजामाबाद मजलिस बल्दिया के तहत 500 से जायद काम करने वाले मर्द व ख्वातीन हेल्थ वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिप्टी मेयर निजामाबाद मोहम्मद इदरीस खान, कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद जितेश पटेल, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर श्रीनिवास ने हेलमेट और ग्लोव्स तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान और कमिश्नर बल्दिया जितेश पटेल ने कहा कि सफाई वर्कर्स की सेहत को तंदुरुस्ती के लिए हेलमेट और ग्लोव्स तकसीम किए गए। థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దయచేసి మీరు ఇది వాడండి, ఇప్పుడు కూడా మాస్క్ అండ్ గ్లౌజ్ వాడుకోండి. థ్యాంక్స్ సో మచ్. ఏదో ఆపి
అన్ని ఫోటో కోసం కాదు కదా, ఈ మంచి కోసం ఇది, కానీ మీరు వాడుకోవాలా ఇంకా పెట్టేసి లాభం లేదు. नीड और ग्लोव्स दिए गए, इससे पहले रिपोर्ट्स दिए गए, अभी कुछ शूज़ वगैरह की प्लानिंग चल रही है। म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और MHO साहब जितना हो सके उनका लेबर को सेफ सेट करने के लिए उनके जो कोविड-19 की जो बीमारियों की वजह से जो चल रहा है वो हमारे लेबरों को ले आना उनकी कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके उनको सेफ्टी दे रहे और उनको भी फैमिली मेम्बर की तरह उनको देख रहे। अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद में जितना हो सके उनका डेवलपमेंट करने की कोशिश करें कमिश्नर साहब और MHO साहब, और लेबरों को भी जितना हो सके उनका सेफ्टी देने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों का, बेहतरीन काम करें। ఇండియా తెలుగు రెండు సార్, हिंदी। आज डिप्टी मेयर गारू के हाथों से सारे जो NMC स्टाफ है उनको हेलमेट और ग्लव्स बांटा गया है। और कोरोना के जो अभी फैल रहा है, पहले हम उसको रोकने के लिए लोगों को बोल रहे थे एहतियात बरतना चाहिए, घर से निकलते के टाइम मास्क लगाना चाहिए, और बाहर जाके जब वापस आते तो हाथ सैनिटाइज करना चाहिए, नहीं तो धो लेना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम लोग अपने वर्कर्स का भी ख्याल रखते हुए उनको हेलमेट, ग्लव्स और रेनकोट भी प्रोवाइड कर रहे। और वर्कर्स के अगर हम लोग हेल्थ के लिए हमको अगर और कुछ अच्छा करना चाहिए तो सभी को अपने घर पे जो गीला कचरा और सूखा कचरा उसको अलग करना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स को जो सबसे मुश्किल काम होता है वही है कि आपके जो घर से जो कचरा निकलता है उसको गीला और सूखा अलग करना। अगर आपको मन से अपने दिल से ऐसा लगता है कि अपने वर्कर्स की खुशहाली के लिए अपन को कुछ करना चाहिए तो आपके अपने घर पे कोई भी 2 डब्बे में उसको गीला और सूखा अलग कीजिए और हमारे जो गाड़ी है उनको दे दीजिए। क्योंकि जब आप कचरा अलग नहीं करते और रास्ते पे जाके फेंक देते हैं तो हमारे वर्कर्स को उसको उठा के अलग करना पड़ता है और फिर डंप यार्ड लेके जाके उसको सॉर्टिंग करना पड़ता है। तो सभी से मेरी गुजारिश है कि कोरोना के टाइम पे हैबत खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने खुशहाली के लिए बस अपन सलामती के लिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है, कुछ नहीं होता है। हमारा स्टाफ जो है और हम लोग भी है बाहर घूम के पूरा जो नज़र में रखे हुए हैं सब जो भी प्रॉब्लम्स है, और पूरी कोशिश करेंगे कि निज़ामाबाद में कोरोना बिल्कुल ना फैले। उसके लिए आप घर से निकलते के टाइम मास्क ज़रूर। भैंसा जूनियर सिविल कोर्ट की नई तामीर शुदा बिल्डिंग के अहाते में जुडिशनल फर्स्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर ईश्वर अय्या और C शंकर एडवोकेट भैंसा बार एसोसिएशन सदर की क़यादत में सजरकारी करते हुए बड़े पैमाने पर पौधे लगाए गए। इस मौके पर DEE R&B रविंदर रेड्डी, सैयद बासित कंट्रैक्टर के अलावा दीगर एडवोकेट्स मौजूद थे। निजामाबाद शहर में बल्दिया के तहत गैर कानूनी नल कनेक्शन को बाकायदा बनाने के लिए 31 जुलाई तक दी गई मोहलत के पेश नज़र ताहाल 67 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। इनमें 30 दरख्वास्तों की मंजूरी करते हुए कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद जीतेश पाटिल ने अहकामात हवाले किए। BPL दरख्वास्त गुजारों से सिर्फ ₹1 और APL दरख्वास्त गुजारों से ₹100 लिए जा रहे हैं। कमिश्नर बल्दिया ने अवामुल नास से कहा कि अपने अपने गैर कानूनी नल कनेक्शन को बाकायदा बना लें। 1 अगस्त के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। निजामाबाद से अहमद अली खान, नुमाइंदा खुसूसी की रिपोर्ट। నీళ్లు కనెక్షన్ క్రమబద్ధీకరణ గురించి ముందే సిఆర్ తీసుకొని ఒక ప్రణాళిక పెట్టడం జరిగింది। రవి గారు మన డిప్యూటీ కమిషనర్ గారు దీంట్లో లీడ్ తీసుకొని అవగాహన పెంచడానికి ముందు కూడా ఒక ప్రెస్ నోట్ ఇష్యూ చేశారు కార్పొరేషన్ తరఫున। అదేవిధంగా జనాలు కూడా ముందుకి వస్తున్నారు ఇప్పుడు, కానీ ఇంకా చాలామంది ట్యాప్స్ రెగ్యులరైజ్ చేయడానికి ముందుకి వచ్చేసి ఈ అవకాశం వాడాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। ఇప్పుడు మన సిటిజన్స్ వచ్చేసి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు, అమౌంట్స్కి సరిగా జనాలకి అవగాహన వెళ్ళట్లేదు, అమౌంట్స్ చాలా నామినల్గా ఉంది।
బీపీఎల్కి అంటే 1 రూపీస్ ఉంది, ఏపీఎల్ ఉంటే 100 రూపీస్ ఉంది. సో ఇది రెగ్యులరైజేషన్ ఛార్జెస్ కట్టేసి వాళ్ళు ట్యాప్ కనెక్షన్స్కి రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవచ్చు. దానికి కాగితాలు వాళ్ళు జోన్ ఆఫీస్ లేదా సిటిజన్ సర్వీస్ సెంటర్లకి ఇచ్చేస్తే వెంటనే అది ప్రాసెస్ చేసుకొని మేము వాళ్ళకి ప్రొసీడింగ్స్ ఇచ్చేస్తాము. దానికి సాక్షులు మన ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా అభిప్రాయం చెప్తారు మీకు. సో దయచేసి నిజామాబాద్లో అందరూ ఎవరైనా ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చేసి ఈ సువర్ణ అవకాశం మీరు వాడండి. సో దాట్ కార్పొరేషన్కి కూడా లాభం ఉంటుంది, మీకు కూడా మేము సరిగా సేవలు అందజేస్తాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. सर ఒకటి हिंदी हिंदी सर हिंदी हिंदी आज यहाँ पे जो जमा हुए हैं लोग, वो निज़ामाबाद में जो भी इलीगल टैप कनेक्शन है उसको रेगुलराइज कराने के वास्ते आए सो लोग हैं. उन्होंने इस जो एक अच्छा एक चांस मिला है उसको यूज़ करके आगे आके उन्होंने अपना टैप कनेक्शन रेगुलराइज करा लिया. तो इसके लिए डॉक्यूमेंट जो है 4-5 डॉक्यूमेंट की ही ज़रूरत होती है और बहुत क्लियरली पहले भी बताया गया था. तो सभी से गुजारिश है वो लोग आगे आए और अपना जो टैप कनेक्शन है उसको रेगुलराइज करा ले. इसकी जो अमाउंट है बहुत ही किफ़ायती है. 1 रुपये में बीपीएल का जो भी है अगर कनेक्शन इलीगल है उनका तो वो रेगुलराइज करा ले सकते. जो भी एपीएल है 100 रुपीज़ में उनका रेगुलराइज हो जाएगा. तो जल्द से जल्द जोन ऑफिस में पहुँचे या सिटीजन सर्विस सेंटर में अपना एप्लीकेशन दे दे और हम लोग प्रोसेसिंग करके टैप का जो कनेक्शन है आपका उसको रेगुलराइज करेंगे. तो लोग जो हैं उनकी भी आप राय जानिए ताकि सबको सहूलियत हो जाए और अपने जो निज़ामाबाद में है वाटर सप्लाई बहुत अच्छे तरीके से हो सके. మరీ నెగిటివ్గా కాకుండా ఇది చెప్తే మంచిది అన్నట్టు డబ్బులు కూడా ఇవ్వండి అని మాట్లాడారు. आदिलाबाद टास्क फोर्स पुलिस ने आज आदिलाबाद टाउन के 2 अलग अलग मुकामात पर धावा करते हुए 13 जुआ खेलने वालों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से 30,000 से ज्यादा नकद रकम जब्त करते हुए केस दर्ज कर लिया गया. जिला एसपी आदिलाबाद विष्णु एस वारियर की हिदायत पर टास्क फोर्स ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया. हैदराबाद शहर के चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 3 डकैतियों को गिरफ्तार करके 9 मोटरसाइकिलों को जब्त करते हुए अपनी तहवील में ले लिया. चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने एक केस रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया. ले लेंगे ना तुम्हारे से बढ़ के. आज जो है हमारे क्राइम टीम ए वर्मा और रेड्डी साहब और टीम निखिल शाही और पूरे मिलकर जो 3 मेजर एक्यूज्ड मिर्जा जुल्फा अली, सैयद निसारुद्दीन और ओवैस खान बोल के 3 एक्यूज्ड को अरेस्ट करे और एक जुवेनल बॉय है इसमें. ये लोग आप पूरे मिला के 9 गाड़ियाँ इसमें जो अनरजिस्टर है वो गाड़ियाँ भी चोरी करे. तो पूरे चोरी करे 100 गाड़ियों को हम लोग रिकवरी करें और इनको आज जो है रिमांड किया.
गाड़ियाँ जो है डिफरेंट पीएस के है। हमारे चांद्रायन गुट्टा पीएस के 4 है जी और आदिबटला और रेन बाजार और एलबी नगर और कंचन बाग और बालापुर के 5 है। पूरे क्या बाहर केस के 5 है। जी क्या केस किया सर लोगों आपने क्या केस बुक हुआ है इसमें ये चोरी जो 379 में बुक हुआ है जी इनके ऊपर जो अभी केसेस जा रहा है इसके ऊपर पीडी एक्ट भी हम लोग इम्पोज कर रहे हैं। पूरे अरेस्ट है पूरे अरेस्ट है। अभी रिमांड भी जा रहा है। सर व्हीकल्स पूरे वो हो सर रिकवरी हो गए। पूरे व्हीकल जो है यही थोड़े गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। उनको गाड़ियाँ चोरी करना और इधर उधर बेचने का वो सब। इससे पहले भी ये लोग केसेस में है घर फोड़ी वैसे केसेस और एक जो है बाइक जो है। हैदराबाद से यूपी जाने वाले तकरीबन 100 महाजिर मजदूरों को आदिलाबाद के करीब भोरज चेकपोस्ट पर रोक दिया गया था। सदर कांग्रेस अखिलती सेल साजिद खान को इत्तला मिलने पर साजिद खान मुकाम पहुंचकर मुतालिका ओहदेदारान और महकमे पुलिस से कामयाब नुमाइंदगी करते हुए मजदूरों को इनके वतन रवाना कर दिया। साजिद खान और इनकी टीम ने मजदूरों में खाने की जरूरी अशिया तकसीम की। मजदूरों ने साजिद खान की इंसानी हमदर्दी पर शुक्रिया अदा किया। आदिलाबाद में कोरोना के साथ दूसरी मौत रिम्स हॉस्पिटल में खदीम हाउसिंग बोर्ड की 70 साल ज़ईफ औरत जिसको कल यानी हफ्ते को कोरोना मुस्बत आया था। रिम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आज ज़ईफ खातून मौत वाक़ हो गई। आदिलाबाद में आज मजीद 9 नए कोरोना मुस्बत केसेस दर्ज हुए। महल्ला कोलीपुरा से 6, शांतिनगर से 1, टीचर कॉलोनी से 1, बोध मंडल से 1, जिनमें 4 ख्वातीन और 5 मर्द शामिल है। खुद को और अपने घर वालों को इस मौलिक वबा से महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर को लाजिम कर लें। हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल AK न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।